Welcome in linear equation part 3 class 10. In this part we are going to see algebraic method of solving a system of linear equation. In the previous part we have seen graphical method to solve a system of linear equation. In this part we want to see algebraic methods for solving a system of linear equation in two variables. There are three basic methods for solving a system of linear equation in two variable. दो वेरिएबल के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का तीन एल्जेब्रिक मेथड है. नंबर वन, सब्स्टिट्यूशन. Substitution method it is called. In this method, from the given two linear equation, we take any one and find either x or y. We find either x in term of y or y in term of x and substitute it in the second equation. And in this way, we find the values of x and y. कोई एक इक्वेशन लेंगे, उसमें या तो x को y के टर्म में लिखेंगे या तो y को x के टर्म में लिखेंगे और उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. इस तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इस मेथड में. सेकंड इज इक्वेटिंग कोफिशिएंट. इक्वेटिंग कोफिशिएंट. In this method, we try to equate the coefficient of x and y, either x or y. We try to make them same. Equating coefficient means we try to make either coefficient of x or coefficient of y same, and then by adding and subtracting, one variable can be cancelled and other can be calculated. You will see by an example, then you will understand. And third method is called cross multiplication method. Cross multiplication. So these are the three methods for solving a system of linear equation. So we take an example of a system of linear equation and we solve the system of linear equation by substitution method. Then we solve by equating coefficient, then by solve by this method, cross multiplication method, and you will see in all the methods your answer will come same. So let us take one problem and try to understand. So three method. First method is substitution, second is equating coefficient, and third is cross multiplication. See, question is solve. One question I am taking, solve. Two x plus y, 2x plus y equal to 5. Second is 3x minus 2y equal to 4. Clearly, this is a system of linear equation in two variable. Let us solve them. Let us solve this system of equation by substitution method, then by equating coefficient, and then by cross multiplication method. So first we want to take substitution method. Let us solve this equation by substitution method. In this equation, we take the equation
given as equation number 1 and equation number 2. Okay, this is equation 1, equation 2. Now we take any one, कोई एक ले लीजिए, either 1 or 2. Let us take 1. From 1 you can take 2 also in place of 1. From 1 we find either x in term of y or y in term of x. किसी को भी लिख सकते हैं. Suppose we are finding y in term of x. y का वैल्यू निकालिए जिसमें सिर्फ x होगा. ये है y in term of x. What will be y? Can you write? It is said y is written in term of x. y का वैल्यू लिखा गया है x के टर्म में, इधर और y नहीं है. इस तरह से या तो x को y के टर्म में लिखेंगे या तो y को x के टर्म में लिखेंगे. x को y के टर्म में भी लिख सकते थे. ओके, नाउ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2. इस वैल्यू को हम लोग यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां पुट करेंगे. सब्स्टिट्यूटिंग इन, इसको कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे? 2 में. बैठाइए 2 में. 3x माइनस 2y, y के जगह पर ये लिख देंगे. इन प्लेस ऑफ y वी राइट 5 माइनस 2x इक्वल टू 4. इन दिस वे द इंटायर इक्वेशन कन्वर्टेड इन वन वेरिएबल. ये देखिए अब इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है x, y हट गया, y already removed. Now from here we find the value of x, and that x can be substituted either in this equation or in this equation or even in this equation. Let it be equation number 3. Now find x from here. So this can be written as 3x minus 10, 3x minus 10 minus minus plus 4x equal to 4. Okay, see, so 3x plus 4x, 7x equal to 4 plus 10, 14, and in this way x is coming 14 by 7, that is 2. Now we substitute this value of x either in equation 1 or 2 or 3. ये 3 and 1 are same. कहीं पर भी आप x का वो वैल्यू बैठाइए और y का वैल्यू निकाल लीजिए. It will be easier. From 3, from 3 you find y. y is your 5 minus 2x. y is 5 minus 2x. In place of x we write 2. 5 minus 4, 1. So x equal to 2 and y equal to 1 is the answer for this system of linear equation. This x equal to 2 and y equal to 1 will satisfy both the equation. दोनों को satisfy करेगा. देखिए यहाँ 2 बैठाइए, x2 y1, तो 2 4 plus 1 5, इसको satisfy किया. x2 y1, तो ये 2 हो गया 6 और ये 1, तो ये हो गया 2. 6 minus 2, 4. So in this way x equal to 2, y equal to 1 is a solution of this system of linear equation. This method of solving a system of linear equation is called substitution method. इसमें क्या किए कि एक इक्वेशन ले लिए ये दोनों में से और उसमें से y निकाल लिए x के टर्म में और इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए सेकेंड इक्वेशन में, y की जगह पर लिख दिए. पूरा x में कन्वर्ट हो गया, वहां से x निकाल लिए. x निकालने के बाद फिर y निकाल लिए. दिस प्रोसेस is called substitution method. So I hope you have understand this substitution method. Now we solve the same system of linear equation by equating coefficient. आपका सेकेंड मेथड है ना, तो आप देखिए कि इक्वेटिंग कोफिशिएंट से कैसे सॉल्व करते हैं. आप बोलेंगे कि जब ये सॉल्व हो गया तो फिर इक्वेटिंग कोफिशिएंट से सॉल्व करने का क्या जरूरत है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या जरूरत है, किसी
एक मेथड से सॉल्व हो गया तो हो गया। कुछ ऐसे इक्वेशन आएंगे जिसको इस प्रोसेस से टाइम टेकिंग होगा या ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इक्वेटिंग मेथड विल बी इजियर फॉर ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सम प्रॉब्लम्स विल कम वेयर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस विल बी इजियर। आगे देखिएगा वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन विल कम, जहां देखिएगा कि उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही आसान होगा, इक्वेटिंग कोफिशिएंट से ही आसान होगा। कोई कोई सवाल है जो इससे आसान होगा। तो तीनों मेथड आपको सीखना है, जिससे आसान होगा उससे बनाएंगे। ओके, एंड सम टाइम मे बी रिटन, कहीं अगर एग्जाम में लिख दे कि सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड, तब तो फिर उसको फॉलो करना है। सो लेट अस सी नाउ सेकेंड मेथड, हाउ टू सॉल्व दिस system of linear equation. देखिए, your first equation is, you will write given equations are, दिया हुआ इक्वेशन है 2x plus y equal to 5, take it equation number 1, and 3x minus 2y equal to 4, take it equation number 2। एक को इक्वेशन 1, दूसरा को इक्वेशन 2 ले लिया। इक्वेटिंग करना है कोफिशिएंट। दिस इज व्हाट इज, दिस इज इक्वेटिंग कोफिशिएंट है ना। हियर यू कैन राइट इक्वेटिंग कोफिशिएंट, equating coefficient method। okay, what we are doing, equating coefficient method से बना रहे हैं, ठीक है। तो in this method we try to make either coefficient of x or coefficient of y same। या कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, ये x का कोफिशिएंट है, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 3, here coefficient of y is -2। we try to make either coefficient of x or coefficient of y same। या तो x या तो y, दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट को सेम बनाइए। कैसे? see in the second equation coefficient of y is 2 -2। we want to make here either -2 or +2। इसको 2 बनाना है, तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 बन जाएगा। मल्टीप्लाइंग 1 by 2, तो ये क्या हो जाएगा 4x + 2y = 10। नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x - 2y = 10। इसको रख लीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। एंड ये जो 2 है ना, बाई -1 कर लीजिए अगर एकदम सेम करना है तो। ये -2 है, इसको भी 2y बनाना है। ऐसा सेम करने से घटाएंगे और प्लस माइनस रहता तो ऐड करते। चलिए आप सेम कर लीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 2y हो गया। इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये 2y हो जाएगा ना। तो 2/-1 देन व्हाट विल बी -3x। इसको -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसको ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा -4। यू टेक इट इक्वेशन नंबर 4। इससे क्या हुआ, ये y का कोफिशिएंट को सेम कर दिए। आइदर x और y कोफिशिएंट शुड बी मेड सेम। या तो x का कोफिशिएंट या तो y का कोफिशिएंट को सेम बनाया जाएगा। वही किया गया ना, सेम हो गया। अब क्या कीजिए कि आप घटा दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग। अब सब्ट्रैक्टिंग कर लीजिए। इफ यू सब्ट्रैक्ट, this minus will become plus and this plus will become
माइनस, दिस माइनस विल बिकम प्लस, नीचे वाला का साइन चेंज हो जाता है। सब्ट्रैक्टिंग का मतलब नीचे वाला का साइन चेंज कर दीजिए और फिर ऐड कर दीजिए। चेंज कर दिए, अब ऐड कीजिए। तो अब ऐड करने से क्या होगा कि 4x प्लस 3x, दिस विल बी 7x, एंड 2y माइनस 2y कैंसिल, एंड 10 प्लस 4 14। इस तरह से y हट गया, अब यहां से x निकल जाएगा। व्हाट विल बी x? x विल बी 2, 14/7। In this way x can be calculated। क्या किए, y का कोफिशिएंट को सेम किए। y का कोफिशिएंट को सेम करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये 2y हो गया, इसको -1 से मल्टीप्लाई किए तो ये माइनस माइनस प्लस होकर ये भी 2y हो गया। अब दोनों जब सेम हो गया तो इसमें से इसको घटा दिए, घटा देने से y कट गया, x निकल गया। अब x का वैल्यू आप किसी में बैठा दीजिए, फ्रॉम 1 here 2x, x is 2, 2 into 2 plus y equal to 5. So y will come 5 minus 4, 1. So in this way x and y can be calculated. So what here we have done, we equate the coefficient of y, then by subtracting we get the answer. And so this process of solving a system of linear equation is called equating coefficient methods. Okay, इस तरीके से कोई y का कोफिशिएंट या x का कोफिशिएंट को सेम करके घटा के हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, which is very important. Some situation will come where cross multiplication method will be the easiest one. Then you have to do that method only, or in exam it may be written do or solve by cross multiplication method. This cross multiplication method is very very important. ये शॉर्ट भी है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको बढ़िया से देखिए, लास्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Try to understand cross multiplication method. Cross multiplication method. Okay, given इक्वेशंस आर, दिया हुआ इक्वेशन हमारा क्या है, इसको लिखते हैं 2x प्लस y, इसको इधर ले आइए, इधर 0 कर लीजिए, दोनों को एक ही फॉर्म में ले आइए। 3x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। टेक इट इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। समझ गए बात, यहां तक ठीक है। नाउ देखिए, ध्यान से इसको देखिएगा, x लिखेंगे, एक लाइन देंगे इसे, वी लीव दिस, ये x वाला टर्म को पूरा पूरी छोड़ देंगे, इसको आप भूल जाइए, ऐसे इसको छोड़ दिए, ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, y का कोफिशिएंट और ये -4, y का कोफिशिएंट कितना है +1 इंटू ये -4, थोड़ा और बड़ा बड़ा लिखते हैं, वो ज्यादा ठीक रहेगा। देखिए क्या करते हैं, x लिख दिए,
एक लाइन खींच दिया, ये छोड़ देंगे। 1 इंटू -4 प्लस 1 इंटू -4, समझ गए? बीच में माइनस रखेगा। -2 इंटू -5, बोलिए समझे कि नहीं? क्या करना है? x लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसका कोफिशिएंट और ये 1 इंटू -4, बीच में माइनस, ये -2 इंटू -5, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, y लिखेंगे, ठीक है। y लिख के ये y वाला कॉलम पूरा छोड़ दीजिए, ठीक है। और फर्स्ट टाइम में ऐसे ऊपर से मल्टीप्लाई करना शुरू किए थे, अब नीचे से मल्टीप्लाई करना शुरू किए। नीचे से मतलब देखिए, ये छोड़ दिए, 3 इंटू -5 प्लस 3 इंटू -5, बीच में माइनस साइन, 2 इंटू -4, देखिए ठीक से देखिए फिर से, y करके ये छोड़ देंगे पूरा, और नीचे से मल्टीप्लाई शुरू करेंगे। 3 इंटू -5, फिर बीच में माइनस, 2 इंटू -4, फिर इक्वल टू 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद ये कांस्टेंट टर्म को छोड़ देंगे, इसको पूरा छोड़ दीजिए। अब ऊपर से फिर मल्टीप्लाई शुरू कीजिए। 2 इंटू -2, 2 इंटू -2, बीच में माइनस, 3 इंटू यहाँ 1 है, 3 इंटू 1, देखिए ठीक से देखिए, फिर से एक बार समझाते हैं, बढ़िया से समझिए इसको। ये सब में सेम प्रोसेस होगा, तो एक अगर समझ गए तो हो जाएगा। पहले x लिखेंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये ऊपर से मल्टीप्लाई शुरू करेंगे। y का कोफिशिएंट इंटू दिस, बीच में माइनस, यहाँ y का कोफिशिएंट इंटू दिस, ऐसे दिस 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 माइनस दिस, 1 इंटू -4 माइनस -2 इंटू -5, समझ गए? इक्वल टू, फिर y लिखेंगे, y लिख के ये कॉलम को छोड़ देंगे, ये और ये बचेगा दोनों। x लिखने के बाद ऊपर से मल्टीप्लाई शुरू किए थे ना, अब आप नीचे से मल्टीप्लाई शुरू कीजिएगा। ये लिख दिए y, 3 इंटू -5, बीच में माइनस, 2 इंटू -4, फिर से देखिए, y लिखे, we leave this column of y, we start from bottom now। 3 into -5 minus, in the middle minus, 2 into -4। I hope you have understand। Then 1, after writing 1 divided by, we leave this constant। Now these two column will left। Again we start from top, इसको छोड़ दिए, अब टॉप से स्टार्ट करेंगे। 2 इंटू -2 माइनस 3 इंटू 1। पहले फर्स्ट वी राइट x, स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम टॉप, देन वी राइट y, लीव द कॉलम y एंड स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम बॉटम, देन वी टेक 1, लीव द कांस्टेंट टर्म एंड अगेन स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम टॉप। पहले x लिखेंगे, उसके बाद x के कॉलम को छोड़कर टॉप से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y लिख के y का कॉलम को छोड़ेंगे, बॉटम से शुरू करेंगे, और फिर कांस्टेंट टर्म को छोड़ देंगे, 1 लिखेंगे और फिर टॉप से शुरू करेंगे, टॉप, बॉटम एंड देन अगेन टॉप। लास्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वी राइट x एंड लीव दिस कॉलम फ्रॉम टॉप, 1 इंटू -4, बीच में इन द मिडिल ऑलवेज माइनस, -2 इंटू -5,
then y, and we leave this column. We start from bottom. 3 into minus 5, then minus in the middle, 2 into minus 4. Then for constant we take 1 and we leave this, and again we start from top. 2 into minus 2, in the middle minus, 3 into 1. This you have to understand. After practicing 1-2 problem, this becomes easier for you. 1-2 problem बनाइए ना, easy हो जाएगा. Now we can write it x by, what is it, 1 into minus 4, minus 4, minus in the middle, minus 2 into minus 5, minus into minus plus 10, ये माइनस रहेगा. थ्री इंटू माइनस 5 कितना, माइनस 15, माइनस, ये माइनस हुआ ये वाला. 2 इंटू माइनस 4, माइनस 8, यहां होगा माइनस 8, ऐसा समझ के बात. 3 इंटू माइनस 5, माइनस 15, माइनस 2 इंटू माइनस 4, माइनस 8, इक्वल टू 1 बाई, इसको 2 इंटू माइनस 2, माइनस 3 इंटू 1. यहां देखिए फिर x बाई माइनस 14, माइनस 4, माइनस 10, माइनस 14, इक्वल टू y बाई, this will become minus minus plus, minus 15 plus 8, minus 7, 1 by minus 4 minus 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. फिर माइनस 15 प्लस 8, प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ बिगर. ठीक है. सो we can rough this now. So we are getting x by minus 14 is equal to 1 by minus 7 and y by minus 7 equal to 1 by minus 7. So what will be? X will be minus 14 will go to that side, minus 14 by minus 7, and y will be, this will go to this side, minus 7 by minus 7. So x will be 2, minus minus cancel, and y will be minus minus cancel, 7 7 cancel. Answer will come same, x equal to 2, y equal to 1. So in this way you have seen, by substitution, by equating coefficient, and by cross multiplication, in all the cases answer is coming same. But these are the 3 different methods or process of solving a system of linear equation in 2 variable. You should know all the 3 methods. Wherever required, the methods we can use. जहाँ जिसका जरूरत होगा यूज करेंगे. If anywhere cross multiplication gives comfortable, we use cross multiplication. If anywhere equating coefficient method gives comfortable, we use that. And if substitution method gives comfortable, we use their substitution. But you have to know all the 3 methods. So in this video, this much. Go on watching linear solution of linear equation. Let us see in the next video something more we want to discuss related to linear equation in 2 variable. Thank you for watching.